Hello everyone, this is Subhendu Das, your physics mentor. Welcome to our physics channel, Subhendu Physics. And today in today's lecture, we will discuss the scalar vector chapter that is available in class 11 CBSE as well as CHS Physics. And it is one of the finest topic in our physics chapter. That means it is not a chapter; it is your basic mathematics content. Okay, so I believe this is as a chapter. It is a very interesting chapter actually. So without any delay, let's start our discussion. With full of patience, try to listen the content so that from the beginning to end, you can understand the content in a very fruitful manner. Okay. So let's start the topic. Physical quantity. For first part is, what do we mean by physical quantity? In units and measurement, we have discussed what is physical quantity. The quantity which can be measured directly or indirectly. The quantity which satisfies the laws of physics in nature, that is called physical quantity. So we can write, here we can write quantity which can be measured directly or indirectly. Second thing, physical quantity helps us to define the laws of physics. One more thing you remember, the measured value of the physical quantity is called magnitude. So as measured value of a physical quantity, measured value of a physical quantity is its magnitude. So every physical quantity has magnitude, but in addition to this, physical quantity may or may not possess an extra characteristics. In addition to this, physical quantity may or may not possess an extra characteristics called, that special characteristics is called direction. I think it is clear to all of you. And based on this content, based on this factor, physical quantity is categorized into two groups. One is your scalar quantity, second one is vector quantity. So up to class 10, whatever the quantity or what you have already studied, maximum things are under scalar quantity. Okay, but in class 11, basically we will focus upon the vector quantity concept. So what is that content? Now see. Now our next topic is scalar quantity. तो हमको पता चल गया actually each and every physical quantity possesses magnitude. That means scalar quantity के पास कौन सा चीज available है? Only magnitude. So it is having only magnitude. The quantity, scalar quantity possesses magnitude only. For example, that means it has no direction. They have no direction. We can say they do not have any direction. They don't have any specific direction. If I wish to measure the length of this pen, so what I have to do? Placing the zero, inserting the zero of the scale at this point. If I will get, this is 15 centimeter, this side represents 15. So simultaneously placing the zero of the scale at this point, you will get 15 at the other end.
दैट मीन्स तुम लोग इस साइड से लेफ्ट टू राइट मेजर करो या राइट टू लेफ्ट मेजर करो, तुम लोग पेन को ऐसे रख के मेजर करो या ऐसे रख के मेजर करो, द लेंथ रिमेन सेम. So for example I can write length, mass, time, next one is our speed. So many quantities are there, so etc. are scalar physical quantity. They are scalar physical quantity. And remember, no special measure needs to be taken to represent the scalar quantity. Next point क्या है? No special measure. No special measure needs to be taken to represent scalar quantity. To represent the scalar quantity. इनको रिप्रेजेंट करने के लिए दूसरा कोई रूल हमको फॉलो नहीं करना चाहिए. स्पेशल रूल्स आर नॉट अवेलेबल. ओके, एंड दे आर द स्केलर क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्सट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड ओके, उनका डिवीजन भी जो भी बाय ऑर्डिनरी अलजेब्रिक ऑपरेशन. So they can be added. Scalar quantities can be added, subtracted, multiplied and divided by normal algebraic operation. And normal algebraic operation. Another is scalar quantity remains same upon rotation. Okay, तो रोटेट होने से उनका इसका लेंथ चेंज नहीं होगा. तो upon rotation scalar quantity remains same. So these are some basic ideas, basic characteristics of our scalar quantity. I think it is clear to all of you. Okay, next thing is our vector quantity. उसका चीज क्या है? देखो, वेक्टर क्वांटिटी में वेक्टर क्वांटिटी, yes, very good content. Vector quantity possesses both magnitude and direction. Remember, we will discuss in detail vector quantities possess both magnitude and direction. Yes. सेकेंड पॉइंट हम लोग को क्या सोचना चाहिए? देखो, फॉर एग्जाम्पल के हिसाब से हमको कंसिडर करना चाहिए. पहला एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर सकते हैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, एक्सीलरेशन, जो भी. तो सिंपली कैन राइट डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, देन फोर्स, एक्सीलरेशन, momentum, etc. And all of you remember, special measures needs to be taken to represent the vector quantity. That's very important point. Okay, what are those special measures? We will discuss in this lecture. So special measure needs to be taken to represent vector quantity. And also remember, vector quantities obey vector algebra. Yes, normal algebraic operation में हम लोग काम नहीं कर सकते. तो vector quantities obey vector algebra. One more thing I want to discuss. What is that? डिफाइंड ऑपरेशन एंड अनडिफाइंड ऑपरेशन. ये चीज क्या है? देखो,
Suppose if I will say vector by vector, वेक्टर बाय, इसको सोचो, नहीं तो स्केलर बाय वेक्टर, स्केलर बाय वेक्टर, इसको सोचो, नहीं तो नंबर बाय वेक्टर, नंबर डिवाइडेड बाय वेक्टर. So all these are undefined operations. Remember this thing. All these are undefined operations. They have no existence at all in physics. Undefined operation. But vector by scalar, then vector by number, all these are defined operations. So now we came to know that vector division is impossible. So vector division ये क्या है? This one is one undefined operation. This is one of the undefined operation. This one is our undefined operation. I think it is clear. This is undefined operation. Very good. Vector division. So in this whole chapter, we will not discuss anything regarding your vector division. Vector addition, vector subtraction, and vector multiplication. These three are very, very important for this chapter. I think this basic idea regarding your vector quantity is clear. And दूसरा चीज क्या है, देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है हमारा वेक्टर क्वांटिटी चेंजेस अपॉन रोटेशन. वेक्टर क्वांटिटी चेंजेस अपॉन रोटेशन. और एक चीज याद रखो, कितना नंबर पॉइंट मुझे तो याद नहीं, देखो ये तो वेक्टर क्वांटिटी चेंजेस अपॉन रोटेशन. ये एक चीज को याद रखो, एक्सेप्ट 2 पाई n रोटेशन. 2 पाई n का वैल्यू क्या लेना चाहिए? 1 2 3. ये चीज क्या है, देखो सपोज एक वेक्टर क्वांटिटी आगे जाकर हमको पता चलेगा 2 पाई मीन्स 360 डिग्री. 360 डिग्री रोटेट होने के बाद वही सेम पोजीशन पे आ रहा है. 4 पाई मीन्स देखो वही सेम पोजीशन. 6 पाई पे भी वही सेम पोजीशन, ऐसे. सो वेक्टर क्वांटिटी चेंजेस अपॉन रोटेशन एक्सेप्ट 2 पाई n रोटेशन. देखो वेक्टर के पास क्या है, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड चेंज होने से वेक्टर का भी चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होने से भी वेक्टर चेंज हो जाएगा, और बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज होने से भी वेक्टर चेंज हो जाएगा. ओके, सो रोटेशन पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसीलिए वेक्टर चेंज हो जाएगा. देन नेक्स्ट कंटेंट क्या है, देखो ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड parallel to itself. तो कोई भी वेक्टर को हम लोग पैरेलल शिफ्टिंग पे शिफ्ट कर सकते हैं. तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन जब हम लोग खत्म करेंगे ना, व्हेन वी विल डिस्कस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, आफ्टर दैट आई विल डिस्कस दिस पॉइंट इन ए वेरी फ्रूटफुल मैनर. So with this we have discussed what is the vector quantity, what do you mean by vector quantity, and what are the basic characteristics of vector quantity. Okay, yes. And यहाँ पे जो लिखा हो special measure needs to be taken to represent vector quantity, वो है तुम्हारा triangle law vector addition पे triangle law vector addition, parallelogram law vector addition, polygon law vector addition, resolution method of vector addition, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसा होना चाहिए, एंड डॉट प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, ये सारा का सारा चीज हमको इसके अंदर आ जाएगा एक्चुअली स्पेशल मेजर पे. ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट कंटेंट देखो, नेक्स्ट हम लोग क्या, देखो वेरी गुड. यहाँ पे क्या है, छोटा सा डिफरेंस में जो कर रहा हूँ, देखो दे आर डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड ओनली, दैट इज स्केलर, and they are described by its magnitude and direction, that is vector. It is well known to us. They can be changed by changing its magnitude only, yes, but they can be changed by changing its magnitude, direction, or both magnitude and direction. Just we have finished. Then they follow the ordinary rule of algebra,
and they follow vector algebra. Example: distance, mass, time, etc., displacement, velocity, acceleration, etc. These are the examples of vector quantity. I think it is clear to all of you. Very good. Next come to tensor. Okay, ये एक नया चीज है actually. This is not a part of our syllabus, but for reference, I am going to explain what is tensor. Tensor is physical quantity which is having magnitude and direction, but no fixed direction actually. मैग्नीट्यूड अवेलेबल है उसके पास, डायरेक्शन भी अवेलेबल है, बट फिक्स डायरेक्शन नहीं है. डिफरेंट डायरेक्शन पे डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शन. सो टेंसर क्वांटिटीज are the physical quantities which is having magnitude and direction, but they do not have fixed direction. They do not have fixed direction. They have different values. They have different values in different directions. They have different values in different directions. So somehow it is clear to all of you. Somehow it is clear to all of you that tensors have magnitude, tensors of direction, but no fixed direction and different values in different direction. और एक चीज याद रखो, इसका और एक कंटेंट याद है, देखो याद रखो एक्चुअली टेंसर क्वांटिटी which cannot be resolved into components, which cannot be resolved into वो कंपोनेंट का मीनिंग क्या है आगे जाकर हमको पता चलेगा, जिसको मिलाकर वो कंप्लीट क्वांटिटी हमको मिल जाएगा. सपोज मैं बोल रहा हूँ, देखो सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल. ओके, यस. तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक रोप की मदद से तुम लोग एक उसको खींच रहे हो, एंड इसी डायरेक्शन में उसको भी another team is pulling the box along this direction with the help of a rope. So as a result of these two forces F1 and F2, ये बॉक्स कहाँ पे मूव करेगा, दिस बॉक्स स्टार्ट्स टू मूव अलोंग दिस डायरेक्शन. तो ये जो फोर्स, ये इसको हम लोग मानेंगे रिजल्टेंट फोर्स. ये फोर्स का वैल्यू क्या है, रिजल्टेंट फोर्स. इसका कंपोनेंट क्या है, बस ये दोनों मिलकर ये फोर्स को क्रिएट कर रहे हैं. तो दिस टू आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस फोर्स. ओके, तो इसी हिसाब से मेरा कहने का मतलब क्या है, टेंसर व्हिच कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट्स, टेंसर व्हिच कैन नॉट बी रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट्स आर टर्म्ड एज टेंसर्स ऑफ रैंक 0. तो टेंसर्स which cannot be resolved into components are termed as tensors of rank 0. They are visualized as scalar quantity. They are visualized as scalar quantity. अभी जो मैं एक्सप्लेन किया था जो एग्जाम्पल पे, वही एग्जाम्पल पे कितना कंपोनेंट हमको मिल रहा था एक्चुअली, और नेट फोर्स का, टोटल फोर्स का 2 कंपोनेंट. डोंट थिंक दैट ओके कंपोनेंट इज रेस्ट्रिक्टेड इन नंबर्स. नो, एक वेक्टर का 2 कंपोनेंट भी मिल सकता है, 3 कंपोनेंट भी मिल सकता है, 4 भी हो सकता है. ओके, तो इसी हिसाब से टेंसर व्हिच कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड इनटू कंपोनेंट्स आर टर्म्ड एज टेंसर्स ऑफ रैंक 0. एंड नेक्स्ट इज टेंसर्स which can be resolved into 2, 3 or 4 components
or four components are termed as tensors of rank 1, tensors of rank 1. Yes, and they are visualized as vectors. Very good. तो दिस टेंसर क्वांटिटी 2, 3 या 4 कंपोनेंट में स्प्लिट हो सकता है, उसको हम लोग क्या मानेंगे? टेंसर्स ऑफ रैंक 1, एंड दे आर विजुअलाइज्ड एज वेक्टर्स. But tensor which can be resolved into 5 or more than 5 components, tensors which can be resolved into 5 or more than 5 components are termed as tensors of higher rank. So last point हम लोगों को क्या लिखना चाहिए? Tensors which can be resolved into 5 or more than 5 components are termed as tensors of higher rank. Tensors of higher rank. तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सब लोग टेंसर पे आ जाएंगे. ओके, प्रेशर टेंसर क्वांटिटी पे चले जाएंगे. तो वी विल नॉट गो थ्रू इन डिटेल रिगार्डिंग दिस टॉपिक. सो टेंसर क्या है एक्चुअली पता चल गया. सो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो हिस्से में जो डिवाइड किए थे वो सही है एक्चुअली, क्योंकि टेंसर के अंदर ही देखो वेक्टर एंड स्केलर भी अवेलेबल है. क्लियर? तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी जो पार्टीशन हुआ था फिजिकल क्वांटिटी का, वो एक्चुअली सही है एज पर आवर सिलेबस. दैट इज कन्वीनियंट फॉर अस. Okay, very good. Then next is our representation of a vector. So vector को represent करने के लिए three methods are there. One is your symbolic representation, mathematical representation, and last one is graphical representation. So symbolic, mathematical, graphical. देखो ये चीज को, this is the basic. These are the basic concepts actually. This is called fundamental. Okay, यहाँ पे तुम लोग समझ नहीं पाओगे तो आगे जाकर दिक्कत होगा. Clear? तो देखो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, पहला चीज देखो, पहला चीज क्या है? सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन. ओके, तो सिंबलिकली हम लोग वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक्चुअली देखो. सिंबलिकली a vector can be represented by an arrowhead, above the symbol, What does it mean? Yes, देखो, three things I want to discuss. Let us think. Let A is a vector quantity. तो सिंबलिकली इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे? पहला चीज देखो, पहला चीज ए से लिखकर उसके ऊपर एक बार दे दो, बार ओवर ए, देन ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं. दिखाई दे रहा है तुमको? यस, दिस इज योर बोल्ड ए. यू कैन राइट बोल्ड ए. एंड ये भी लिख सकते हैं आरो ओवर ए, तो which is convenient for us? arrow over the a. Clear? Yes. So it is time consuming. मैथमेटिक्स में बार मीन्स एवरेज, इसमें तुम लोग यूज कर सकते हो, लेकिन कन्वीनियंट कौन सा होगा? बस आरो ओवर द ए. तो जो सिंबल पे जो आरो मार्क मैं बोल रहा हूँ ना, आरो, ये आरो के पास दो चीज अवेलेबल है. इसको स्प्लिट करने से टू थिंग्स मिलेगा तुमको. देखिए तुम्हारा एक लाइन सेगमेंट, टिप पार्ट. ये क्या है? लाइन सेगमेंट. ये क्या है? टिप पोर्शन. एक्चुअली ये जो लाइन सेगमेंट क्या शो कर रहा है एक्चुअली? दिस लाइन सेगमेंट इंडिकेट्स
वेक्टर हैज गॉट मैग्नीट्यूड, वेक्टर हैज गॉट मैग्नीट्यूड, लेकिन उसके पास कितना मैग्नीट्यूड अवेलेबल है वो पता नहीं चलेगा। बी केयरफुल बिकॉज इट इज सिंबल and this tip portion represents vector has got a direction, vector has got a direction, but they do not furnish about the magnitude and direction. That means exact किस direction पे vector आप present है and उसका magnitude, exact magnitude क्या है, that cannot be predicted by observing these symbols. So we can write they, but they do not furnish about what, they do not furnish about magnitude and direction. I think this part is very clear to all of you. So this is about the symbolic representation of a vector quantity. Next come to our mathematical representation of a vector quantity. So mathematically a vector is represented by, वो चीज हमको पता करना चाहिए। Mathematically we have to represent the vector in such a way that okay, it has to show its magnitude as well as direction. Clear? So we can write mathematically a vector, let A is represented by A vector is equals to A vector mod cap. देखो इसमें भी बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। इन दिस पार्ट व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, दिस रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, एंड ये पार्ट शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो डिटेल्स पे बात करेंगे आप। चलिए उसका रिप्रेजेंटेशन, ये जो मैं लिखा हूं ना, ए वेक्टर मॉड, इसका एब्रिविएशन क्या है, मॉड ए वेक्टर, और यू may tell a vector mod. It shows the magnitude of vector A, magnitude of vector A. Very good. And इसको हम लोग क्या रीड करेंगे, ए कैप और ए हैट। ये क्या शो कर रहा है, ओनली इट शोज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। एक तुम्हारा शो कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, दूसरा क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर है। देखो कंबाइनली वी कैन राइट इट एज ए वेक्टर इक्वल टू मॉड ए इनटू ए कैप, ए वेक्टर मॉड ए कैप। वी हैव टू राइट लाइक दिस, वी हैव टू फॉलो दिस रूल, वी हैव टू ओबे दिस रूल बिकॉज़ दिस इज फिक्स्ड। ओके, आगे जाकर दिक्कत नहीं होगा हमको ये समझ में आने से। तो इसमें ये पता चल रहा है एक्चुअली आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली व्हाट इज ए कैप। ए कैप इज द यूनिट वेक्टर along the direction of a vector, along the direction of a vector. So wait up to our part number 2. Okay, along the direction of a vector. Wait up to our part number 2, in which we will discuss it in detail. We will discuss this thing in. So actually पता चल गया actually. For example, if I will say a vector is equal to t meter from t meter along south direction, along south direction. So now this, as for this line, we can say it represents a vector magnitude and it represents a vector direction. कितना आसान हो गया देखो। So mathematically we have to obey, we have to follow this content. This is the mathematical representation of a vector quantity. Is that clear to all of you? So symbolic representation खत्म हो गया, मैथमेटिकल भी खत्म हो गया। नेक्स्ट वन क्या है, देखो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ने से पहले इसको और बहुत अच्छे तरीके से उसका स्क्रीनशॉट ले जाओ या कॉपी में इमीडिएटली उसको प्लेस करो। ओके, तभी जाकर समझ पाओगे। क्लियर?
ओके, नेक्स्ट geometric representation, very good content. So geometrically a vector can be represented by directed line segment, directed line segment, बहुत बहुत important. This is finest. This is very important actually. Directed line segment का मीनिंग देखो, इसका मीनिंग अभी अच्छे से देखो. यहाँ पे हमको पता है दिस इज योर ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ. एंड देखो ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ना, ये लाइन सेगमेंट तुमको दिखाई दे रहा है. देखो ये जो डायग्राम लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट, इसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ. देखो ये एक लाइन सेगमेंट. ये जो लाइन सेगमेंट के पास टू थिंग्स आर अवेलेबल. एक है तुम्हारा लाइन, उसका जो टिप पोर्शन, अच्छा ये पोर्शन को हम लोग बोलेंगे टेल, एंड दिस रिप्रेजेंट्स हेड. तो हेड क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन शो कर रहा है. एंड जो देखो ये जो लेंथ ऑफ द लाइन, this length of the line is directly proportional to the magnitude of the quantity, physical quantity. तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ direct और length is directly proportional to magnitude. यहाँ से यहाँ तक का जो length, it is directly proportional to magnitude. Okay, very good. So if this angle is suppose 45 degree, okay, this is also 45 degree, and let it is your f vector. Let it is f vector. तो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ. देखो यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ. ये है तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, इट इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर. क्लियर? इफ आई विल से 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, 1 सेंटीमीटर को मैं 1 न्यूटन मान लिया, तो ये कितना न्यूटन शो करेगा? 3 न्यूटन. 3 न्यूटन. एंड उसका डायरेक्शन कहाँ पे है? देखो ईस्ट एंड नॉर्थ, इसको इसके बीच में जो एंगल 45, तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सिंपली वी हैव टू मेंशन F vector is equal to 3 Newton along northeast direction, and 1 centimeter equal to 1 Newton जो मैं लिखा हूँ ना, it represents scale. 1 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर को 5 न्यूटन मान लिया, तो ये 15 न्यूटन लिखोगे. 15 न्यूटन along northeast direction. I think it is clear to all of you. Very good. If I will say this is V vector, this is V vector, and बहुत अच्छे से सुनो, this will help you a lot. And नॉर्थ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल, this is 30 डिग्री, this is 30 डिग्री. एंड इसमें मैं पार्टीशन कर रहा हूँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ से भी 1 सेंटीमीटर. तो मैं लिख रहा हूँ अभी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड. तो 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर कितना हो गया? टोटल 4 मीटर पर सेकेंड हो गया. इसका डायरेक्शन कैसा लिखोगे हम लोग? तो V वेक्टर का आंसर कैसा लिखना चाहिए? देखो V वेक्टर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. वेरी गुड. लेकिन यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट लिखने से गलत हो जाएगा. तो क्या लिखना चाहिए हमको? क्या लिखना चाहिए? ऑब्जर्व प्रॉपर्ली. देखो तो देखो यहाँ पे जो 30 डिग्री ये कहाँ से आ रहा है? देखो कहाँ तक? टुवर्ड्स वेस्ट. तो मैं लिख रहा हूँ टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट. तो पहले हमको क्या लिखना चाहिए? जो एंगल का वैल्यू. तो एंगल का वैल्यू क्या है? एंगल का वैल्यू लिखोगे, एंगल इज 30 डिग्री, 30 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट, 30 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम नॉर्थ, फ्रॉम. तो ये जो फॉर्म में लिखा हूं ना, सॉरी फ्रॉम, ये फ्रॉम को काटकर तुम लोग सिंपली उसको ऑफ लिखोगे. जहां पे ऑफ लिखोगे उसको मन के मन क्या सोचना चाहिए तुमको? ऑफ. तो 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ कैसे रीड करोगे? 30 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम नॉर्थ. और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं. कोई बच्चा ऐसे ही बोलेगा, सर ये 30 डिग्री होने से ये एंगल कितना होगा? ये एंगल 60 डिग्री होगा. तो 60 डिग्री की मदद से what we can write? We can write or V vector is equal to 4 centimeter 60 degree towards north from west.
so towards north from west. Clear? Very good. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोज फोर्स 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर एंड मैं स्केल ले रहा हूँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन। तो कौन सा डायरेक्शन बन रहा है? along द साउथ। तो ये सपोज फोर्स वेक्टर, तो इसका आंसर क्या होगा? एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, सिंपली व्हाट मेंशन along साउथ डायरेक्शन। तो देखो, जितना सारा वेक्टर क्वांटिटी में लिखा हूं ना, उनके पास एक मैग्नीट्यूड अवेलेबल है और क्या चीज अवेलेबल है? एक डायरेक्शन अवेलेबल है। क्लियर? सो दिस इज योर ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी। ये चीज, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, अरे वाह, देखो ऑर्डर ऑफ ए वेक्टर। सेम ऑर्डर का मीनिंग क्या है? अनदर चीज क्या है? ऑपोजिट ऑर्डर। अभी देखो सेम ऑर्डर का मीनिंग क्या है? वेक्टर्स आर सेड टू बी इन सेम ऑर्डर इफ tail of the second, okay, originates from the tip of the first or starts from the begins from the tip of the first। मैं बस डेफिनेशन लिख रहा हूं, उसके बाद बहुत शॉर्ट ट्रिक से मैं तुमको बोल दूंगा। सो वेक्टर्स आर सेड टू बी, वेक्टर्स आर said to be in same order if tail of the second begins from tip of the first, okay। इसमें देखो, दिस इज सपोज योर ए वेक्टर एंड दिस वन इज बी वेक्टर। वेरी गुड। तो ए वेक्टर का देखो, बी वेक्टर का ये वाला चीज टेल, एंड ये कहां से शुरू हो रहा है? ए का हेड पे। तो देखो, तो ये है हेड एंड बी वेक्टर का ये टेल, एच टी कनेक्शन। यहाँ पे भी देखो, ये है तुम्हारा हेड, ये बी वेक्टर का टेल। देखो ये है तुम्हारा हेड, ये क्या है? टेल। हेड रेड कलर वेक्टर का टेल। तो एच टी कनेक्शन और टी एच कनेक्शन दिखाई देगा, तो तभी जाकर मान लोगे सेम ऑर्डर। एंड ये मत सोचना सेम ऑर्डर डज नॉट नेसेसरली इंप्लाई सेम डायरेक्शन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, very important is that point। same order does not necessarily imply same direction। तो सेम ऑर्डर का मतलब सेम डायरेक्शन, ऐसा सोचोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। तो अभी पता चल गया व्हाट इज सेम ऑर्डर। देन सेकंड वन क्या है? देखो, ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स पे और एक चीज अवेलेबल है, व्हाट इज ऑपोजिट ऑर्डर। ऑपोजिट ऑर्डर में क्या दिखाई देगा तुमको? देखो शॉर्ट ट्रिक निकाल दो। देखो यहाँ पे जो वेक्टर दिखाई दे रहा है, दिस इज सपोज योर ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। देखो ये है ए वेक्टर का टेल, यहाँ पे भी बी वेक्टर का टेल। तो टीटी कनेक्शन दिखाई दे रहा है सबको? वेरी गुड, टी कनेक्शन हमको दिखाई दे रहा है। अच्छा, इस वेक्टर में देखो, दिस इज ए वेक्टर सपोज, दिस वन इज बी वेक्टर। एच एच कनेक्शन, हेड हेड कनेक्शन दिखाई दे रहा है। इसमें देखो टेल टेल कनेक्शन दिखाई दे रहा है, इसमें हेड हेड कनेक्शन दिखाई दे रहा है। वेरी गुड। तो हु कैन इमेजिन, ओके, द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपोजिट ऑर्डर? सेम ऑर्डर पे क्या हो रहा था? देखो सेम ऑर्डर का कंटेंट हो गया। ऑपोजिट ऑर्डर में क्या देखो, ऑपोजिट और सेम ऑर्डर पे हम लोग क्या डिस्कशन किए? इफ हमारा जो इन केस ऑफ सेम ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स, टेल ऑफ सॉरी हाँ टेल ऑफ द सेकेंड बिगिंस फ्रॉम द टिप ऑफ द फर्स्ट। लेकिन इसमें क्या दे रहा है? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इन ऑपोजिट ऑर्डर इफ देयर टेल originates from a common point, if their tail originates from a common point। So vectors are, for the sake of definition purpose we can write vectors are said to be in opposite order if their tail begins from a common point or heads meet at a common point। I think this is clear to all of you। Very good। देखो
एंड ये मत सोचना क्या opposite order does not necessarily implies opposite direction. This is one of the strongest line. Opposite order does not necessarily imply opposite direction. Opposite direction. I think this content is very clear to all of you. इसके बाद तुम लोग को जो मेन कंटेंट इसके बाद अवेलेबल है, ऑर्डर ऑफ वेक्टर पता चल गया, व्हाट इज सेम ऑर्डर, व्हाट इज ऑपोजिट ऑर्डर. नाउ वी विल डिस्कस द वन ऑफ द फाइनेस्ट पार्ट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. रिमेंबर, दो लाइन के बीच में कितना एंगल अवेलेबल है, देखो ये ले, तो ये वाला एंगल, दिस इज वन ऑफ द एंगल. क्लियर? यस. लेकिन हमको कौन सा एंगल लेना चाहिए? ऑलवेज रिमेंबर, so in case of angle between two vector, always focus upon the smaller angle between them, but condition available होना चाहिए. If they are having tail-tail connection or head-head connection. शॉर्टकट ट्रिक याद रखो. यस, शॉर्ट ट्रिक क्या हुआ? एंगल बिटवीन two vectors is the smaller angle between them. Is a smaller angle between them when they are joined tail to tail or head to head. देखो ये चीज को अप्लाई करना चाहिए हमको. वेरी गुड. अभी फिगर को देखो, ए वेक्टर बी वेक्टर, दे आर बीइंग, दिस इज द टेल ऑफ ए वेक्टर, दिस इज द टेल ऑफ बी वेक्टर. कौन सा कनेक्शन अवेलेबल है तुम्हारे लिए? टेल टेल कनेक्शन. तो स्मॉलर एंगल, ये भी एक एंगल होगा, ये भी एक एंगल होगा. तो स्मॉलर एंगल कौन सा है? थीटा. सो एंगल बिटवीन वेक्टर इज थीटा. वेरी गुड. लेकिन ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर. ये ए वेक्टर का हेड, ये वेक्टर का बी वेक्टर का टेल. तो एचटी कनेक्शन पे नहीं होगा. ठीक है, तो थीटा लिखने से डायरेक्ट जीरो मिलेगा तुमको. सो क्या करना चाहिए? इन फर्स्ट स्लाइड और सेकंड स्लाइड वी हैव डिस्कस्ड ऑर्डर द वेक्टर क्वांटिटी प्रॉपर्टीज. ए वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ. तो ये जो ए वेक्टर भी दिखाई दिया, इसको पैरेलल से शिफ्ट कराने से क्या हुआ? देखो ये नाम हो गया क्या? ए वेक्टर. एंड दिस वन इज द टेल ऑफ ए वेक्टर एंड दिस इज द टेल ऑफ बी वेक्टर. तो ये एंगल थीटा दे रखा था, ये टोटल एंगल कितना? 180 डिग्री. सो ये जो स्मॉलर एंगल कितना हुआ दोनों के बीच में? 180 डिग्री माइनस थीटा. एंगल बिटवीन देम इज 180 माइनस थीटा. आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. देखो सेम ऑर्डर एंड अपोजिट ऑर्डर पता होने के बाद एंगल बिटवीन टू वेक्टर तुमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा. आई थिंक दिस स्लाइड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस कंटेंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. वेरी गुड. नेक्स्ट देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स. देखो जल्दी जल्दी देखो, जल्दी देखो, इन ए वेरी रैपिड मैनर यू हैव टू टेल द आंसर. ए बिट ए पे देखो, हेड हेड कनेक्शन, स्मॉलर एंगल इज 43, सो आंसर होगा 43. वेरी गुड. बी बी देखो, टी कनेक्शन, टी सेकंड वेक्टर भी टी कनेक्शन, सो आंसर इज 30 डिग्री. वेरी गुड. सी पे, हाँ देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या दिखाई दे रहा है? हेड. ये क्या दिखाई दे रहा है? टेल. नहीं होगा. तो क्या करना चाहिए हमको? क्या करना चाहिए? वेरी गुड. देखो इसमें हमको सिंपली ये जो वेक्टर उसको हम लोग पैरेलल शिफ्ट कराने से क्या होगा? इसको पैरेलल शिफ्ट ऐसे करने से दिस विल बी द न्यू वेक्टर एंड इसका टेल एंड ये इसका टेल. तो टेल टेल कनेक्शन हो गया. सो ये होगा तुम्हारा थीटा. आंसर कितना होगा? 180 माइनस 45. तो टी बीट के लिए थीटा कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 45, that is 135 डिग्री. that is the answer. then D के पास चलो, D के पास देखो, ये है तुम्हारा हेड हेड टेल. हेड टेल पे नहीं होगा. सो ये जो वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कराने से क्या होगा? वेरी गुड. ये हो जाएगा तुम्हारा टेल. टी कनेक्शन पे स्मॉलर एंगल कितना होगा? ये वाला थीटा होगा. ये टोटल एंगल कितना? 180 डिग्री. तो थीटा कितना होगा? थीटा कितना होगा?
थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। आंसर विल बी 60 डिग्री। वेरी गुड। सी के पास डी खत्म हो गया, ई के पास चलो। हिंट्स तो दे रखा है अभी, यहाँ पे वेक्टर था, इसको पैरेलल शिफ्ट कराने से तो टीटी कनेक्शन हो गया, ग्रीन कलर का टेल, ब्लू कलर का टेल, टीटी कनेक्शन, स्मॉलर एंगल इज 30, सो आंसर कितना होगा, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। वेरी गुड। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, नेक्स्ट के पास चलो। नेक्स्ट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। ओके, सो देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। कौन सा वेक्टर है एक्चुअली? एक वेक्टर है तुम्हारा पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, आर वेक्टर। तो किसके बीच में एंगल देखना चाहिए हमको? पहले पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर को जज करो। पी वेक्टर, क्यू वेक्टर, वेरी गुड। पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर को जज करने से ये पी वेक्टर का हेड, ये क्यू वेक्टर का टेल, तो नहीं होगा। तो पी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करना चाहिए हमको। पैरेलल शिफ्ट कराने से ये एंगल होगा तुम्हारा थीटा। एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर कितना होगा? सो थीटा बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर, आंसर क्या होगा? 180 माइनस 30, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 150 डिग्री। परफेक्ट। नेक्स्ट, बिटवीन क्यू वेक्टर एंड आर वेक्टर। अभी देखो, ये तुम्हारा क्यू वेक्टर, दिस वन इज आर वेक्टर, ये भी हेड कनेक्शन अवेलेबल है, स्मॉलर एंगल इज 60 डिग्री, बस so थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। परफेक्ट। नेक्स्ट, बिटवीन पी वेक्टर एंड आर वेक्टर। ये देखो पी वेक्टर, दिस इज आर वेक्टर, टीटी कनेक्शन, स्मॉलर एंगल इज 90, सो थीटा इज इक्वल टू 90। दूसरा एंगल क्या है? देखो 360 माइनस 90। ओके, so smaller angle तो 90 होगा ना। so as for this question, this is the answer. Find the angle between all the vectors. Find angle between all the vectors. देखो आज का सेशन पे कितना सारा फंडामेंटल कंटेंट वी हैव कवर्ड इन ए वेरी सिस्टमैटिक एंड fruitful manner. So without any delay, stay tuned for next update. Without any delay, write all this content in your copy. Okay, in next class we will discuss the different types of vector. After that we'll jump to our addition of vector. Okay, and numerous numericals we will solve in this session in this topic. Okay, so stay tuned for next update. Thank you and have a nice day ahead. Okay, रुको, और भी एक क्वेश्चन अवेलेबल है, ओके ये छूट जाएगा। ओके देखो, कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ड्रॉ 5 न्यूटन 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। ओके, ईस्ट ऑफ साउथ मींस, ईस्ट ऑफ साउथ का मीनिंग क्या है? देखो, ये ऑफ को क्या मानोगे? ये ऑफ मानोगे फ्रॉम, एंड ईस्ट के पहले क्या सोचोगे? ईस्ट से पहले टुवर्ड्स, ऐसे सोच लो, टुवर्ड्स हो गया। तो फ्रॉम, अच्छा टुवर्ड्स ईस्ट, फ्रॉम साउथ। ओके, डिमार्केशन अभी हम लोग कर देंगे। दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम साउथ। ओके, 5 न्यूटन 37 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम साउथ। तो साउथ से हम लोग शुरू करेंगे टुवर्ड्स ईस्ट, ऐसे। वेरी गुड, इसको 37 डिग्री दे दो एंड कैलिब्रेशन तो करना चाहिए इसमें 5 न्यूटन के लिए। 1 2 3 4, देखो 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखना चाहिए हमको 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन, व्हिच इंप्लाइज 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 न्यूटन। पता चल गया अभी? सो एफ वेक्टर इज इक्वल टू 5 न्यूटन 37 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम साउथ, ईस्ट ऑफ साउथ। ऐसे ही होगा उसका आंसर। ओके, यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसेस अकॉर्डिंग टू दिस रूल। दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। परफेक्ट। और कोई क्वेश्चन अवेलेबल है क्या? यस, ये तुम लोग आराम से कर पाओगे। ड्रॉ 2 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। अच्छा, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, इसका मीनिंग क्या है? ऑफ का मीनिंग क्या लिखोगे? फ्रॉम, एंड ईस्ट से पहले टुवर्ड्स, तो टुवर्ड्स ईस्ट
फ्रॉम साउथ, वही सेम टू सेम। ओके, तो 30 डिग्री, तो ये जो हो गया तुम्हारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, आराम से कर पाओगे। तो टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम साउथ, तो 30 डिग्री दे रहा है, तो टुवर्ड्स ईस्ट, वेरी गुड, दिस इज 30 डिग्री। तो दो हिस्से में तो डिवाइड कर दिया, दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, कितना हो गया लेंथ, 2 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू सपोज 1 मीटर पर सेकेंड, एंड सो 2 सेंटीमीटर कितना होगा, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसको मान लो वी वेक्टर, तो वी वेक्टर का आंसर क्या लिखोगे, 2 मीटर पर सेकेंड, 30 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट from south. I think it is clear to all of you. So this is about our session number 1 or part 1 of our chapter scalars and vectors. Okay, one of the finest topic. Okay, बहुत सारा मैथमेटिकल ट्रिक अवेलेबल है इसमें. This is completely new to you, so all of you properly pay your attention, okay, during the time of class. So thank you and have a nice day. Please share your comments in your suggestion box. Okay.